The topic is PESTEL. We are in strategic management. Strategic management basic we have discussed, more or less in detail we have discussed. Today more will discuss. Okay. So what is PESTEL analysis in strategic management? Again, strategic management is totally related to business. Full business you have to manage strategically. Discussed number of things, more or less all the areas covered. Now topic wise, one is PESTEL. So PESTEL, actually what happens, some words are there combined and it is written as a word PESTEL. Okay. So P means political, E means economic, S means socio-culture, T means technology. Now earlier it was pest, later on two more added, legal, and E, environment. Okay. So now 6, PESTEL. Okay. Now macroeconomic, tool to analyze, So PESTEL analysis is used as a tool to analyze macroeconomic or macro environment. Okay. So macro environment full. Okay. So here political, nowadays doing business, big business, when you want to do big business, then your business is influenced by political. You can't avoid, you can't ignore, you have to take it into consideration. And political stability is not there, you will face problem. In business we have adverse effect. Same thing economic, whenever word comes, it is related to profit or loss. So we have to consider cost. So cost, revenue, sales, number of things are there, because survival is only if there is profit, otherwise no survival. Socio-culture means whatever business you are doing this in society. Okay. So that also important, the business what you are in and the society what you have. If that is matching, chance of success is high. Okay. Now one basic example, suppose you want to do business in town, in village culture society is different, town culture society is different, small town culture society different, big town culture society different. Okay. So the business infrastructure, these, that, number of things what you have in the society, what we use the word social capital. Okay.
So that you have to take it into account, then decide. T, technology. T is technology. Technology nowadays, doing business, technology is getting top position. Without technology, you can't be ahead in the field, in the business. You have to face number of problems, especially communication problem. Especially communication problem. Think without technology, your total interaction will be stopped. Then comes legal. The business what you want to do, legally allowed or not. Permissible. Here interesting is your business, national, international, legal laws, problems. How you will come to know? One small example giving you. Okay, one small example. Say one very small business, sweet shop in India. Sweet shop in India. But if you say, I want to do in the same style sweet shop in Canada or USA, you will see not practically possible. When you compare legal formalities there and legal formalities here, you will see in India nothing is there. Clear? इंडिया में क्या होता है, गड़बड़ करने के बाद पकड़ाता है, बोलता है देखो पकड़ा, नकली माल बेच रहा है. गॉट माई पॉइंट? वहां पर केस होने ही नहीं देगा. जैसे यहां पर बिल्डिंग बन गया, बाद में बोला ये इलीगल बिल्डिंग है, बोला 20 साल से बिल्डिंग है, इलीगल है. ऐसा ही होता है ना. वहां पर बिल्डिंग होने ही नहीं देगा, इलीगल तो बाद का चीज है. सो वी आर मच बिहाइंड. यहां है ना इंडिया में, बोला 4G+4 G+5 बिल्डिंग है, कितना 20 साल 30 साल पुराना है, बिल्डिंग बन गया, टैक्स भी हो गया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, पेमेंट भी हो गया, सब कुछ कंप्लीट, सेल भी हो गया 2-4 बार. 30 साल बाद बोल रहा है ये बिल्डिंग इलीगल है. तो बोला अभी तक जो हुआ क्या था, है ना. वहां पर होने ही नहीं देगा. केस समझे? आई थिंक गॉट द मीनिंग. तो दिस इज द डिफरेंस. सो लीगैलिटी पार्ट इन इंडिया एंड लीगैलिटी पार्ट आउटसाइड इंडिया. Legality part in India is biased through political. जैसे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड हो तो आप लीगल हो, और पॉलिटिकल पार्टी से आप कनेक्टेड नहीं हो तो आप इलीगल हो. ये सब का पढ़ाई नहीं होता है, लीगल का पढ़ाई नहीं होता है. ठीक है. तब क्या होता है, यहां का बिजनेस का सिस्टम अलग है. व्हाट माय पॉइंट? तो आपको लीगल सिस्टम एक एक कंट्री का अलग अलग है, आपको उसको समझना पड़ेगा. क्लियर? इसको ऐसे सोचो, यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी डिपार्टमेंट से, किसी डिपार्टमेंट से कोई भी आ गया, यू हैव टू इंटरटेन और नो. बस वहां का सिस्टम अलग है, वहां का सिस्टम अलग है, यहां का सिस्टम अलग है. समझ गए? यहां पर मान लो कोई बिजनेस है, नहीं है पैसा देने के लिए, तो सिंपली यू हैव टू गो टू द कंसर्न प्लेस एंड से सरेंडर. आपको 4 पेज में साइन ऑन कराएगा, बोलेगा जाओ, चैप्टर क्लोज्ड, हो गया, केस खत्म. 4 में केस क्लोज्ड.
और कुछ नहीं करना है। आप डिक्लेयर कर दिया, इंडिया में जाके बोलेगा भी तो उसको 20 साल तक क्वेश्चन आंसर देते रहना होगा। ये समझ रहे हैं? कॉम्प्लिकेशंस इंडिया में, तब बाकी लोग इंडिया में आके बिजनेस क्यों करना चाहता है? फिर क्वेश्चन ये उठता है, इतना प्रॉब्लम है तो इंडिया में क्यों आता है? अल्टीमेटली सब झमेला करने के बाद भी प्रॉफिट है। आफ्टर कंसिडरिंग सो मेनी थिंग्स, देन ऑल्सो ह्यूज पॉपुलेशन, डिमांड, आदमी ही तो डिमांड करेगा ना। अदर कंट्रीज प्रॉब्लम इज पीपल्स आर नॉट देयर। ठीक है। नाउ लास्ट say 10 years, 5 years, in India, those paying tax in crores has multiplied by 5 times. कितना? Structure is changing. The structure is changing. मैंने पिछला 10 साल के अंदर जो टैक्स पेयर्स है टोटल चेंज हो गया। टैक्स कलेक्शन ऑल्सो गोइंग अप, टैक्स पेयर्स ऑल्सो चेंजिंग, एनवायरमेंट इज स्टेइंग। पर डे वाला हिसाब नहीं होता है, साल भर का होता है। जैसे जीएसटी का कलेक्शन अब 2 लाख करोड़ के आसपास हो रहा है पर मंथ। ठीक है, नियर अबाउट 2 लाख करोड़। सो इट्स अ ह्यूज कलेक्शन। पहले साल में 60,000 करोड़ होता था। ठीक है, अब है कि इतना पैसा लेके करेगा क्या? ठीक है, सो इट्स ग्रोइंग। ठीक है, चलो वापस। तो पी फॉर पॉलिटिकल, पेस्टल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशियो कल्चर, टी टेक्नोलॉजी, एल फॉर लीगल, E is environment. Environment, it's itself a wide word. Total surroundings are environment. Then national, international also you can do. But first environment starts from where you are doing business. ठीक है? So, environment. This point is clear? Now, when we talk about technology, ठीक है, nowadays AI, artificial, ठीक है, machine learning, robotic, पहले हम लोग सुनते थे, ठीक है, अब विजिबल है, नजर आता है, दिखाता है आजकल। सर आगे भी तो सर एआई प्रोसेस नहीं आ रहा है। फिर से कोई भी चीज पूरा कभी नहीं होता है। जैसे सर कोई भी चीज पूरा कभी नहीं होता है। डेवलपमेंट गोइंग ऑन। पहले कुछ नहीं था, पहले एआई बोलने से बोलता था क्या है, आजकल बोलता है न्यूज रीडर देखो एआई है। फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं। फिजिकल प्रेजेंस आर्टिफिशियल। अब क्या है, आर्टिफिशियल में और भी नया डेवलपमेंट क्या हुआ है। सपोज एक्चुअल कोई न्यूज रीडर है, उसी का एआई बना देगा। ऐसा लगेगा he or she is reading news. He or she is reading news. थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है अभी, some problem is expressions और ये सब जो है वो भी इनकॉर्पोरेट हो जा रहा है। ठीक है, so long run it means if you are not familiar with AI, if you are not adopting
AI, if you are not implementing AI, if you are not doing the total process through technology, you will be behind. माने आप बाजार से आउट हो जाओगे, आप टिकोगे ही नहीं. फिर से आप कंप्यूटर का यूज करके जब कोई ऑडिट करते हो तो क्या है ये? टेक्नोलॉजी ही तो है. पूरा बैंकिंग प्रोसेस क्या हो गया आजकल? टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी. एआई का मतलब है आर्टिफिशियल. आपका एक फोटो बना दिया और आपको दिखा रहा है, देखो जा रहा है, आ रहा है, जबकि आप बोले हम तो गया ही नहीं, आया ही नहीं, तो कैसे गया आया? दैट इज आर्टिफिशियल. कैसे समझे? ऐसा नहीं कुछ भी टेक्नोलॉजी सब आर्टिफिशियल, ऐसा नहीं. आर्टिफिशियल में कुछ काम ऐसा होगा जो आप किए ही नहीं. तो बोला ये हुआ कैसे? दैट इज एआई. कुछ ठीक हुआ? क्लियर? तो दैट इज एआई. तो आर्टिफिशियल मतलब कुछ ऐसा है जो आप किए नहीं, आर्टिफिशियल हुआ. अब ठीक है? सब ऐसा नहीं. टेक्नोलॉजी बड़ा वर्ड है, उसी के अंदर में आएगा एआई. एआई सब क्या है और एडवांस है. आजकल वार बिटवीन द कंट्रीज दिखलाता है. जिस कंट्री का खुद ही सोच रहा है ये सब कब हुआ. यूक्रेन, रशिया, ये लोग का वार दिखला रहा है. आपको लगेगा सही में हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सब एनिमेटेड है. ठीक है? और ऐसा लगेगा जस्ट लाइक ट्रू पिक्चर, जस्ट लाइक ट्रू पिक्चर्स. क्लियर? चलो अगेन. Again, this point is okay. Now, political influence. And while writing some word, if you have in your account, easily you can elaborate. Government preferences. Government क्या चाहता है? ठीक है ना? So that is political. So ruling party will have some influence. Okay? Economic, say rate of interest. रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ऐसे सोचो, इंडिया में बिजनेस करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8, 9, 10, 11, 12 ये सब रेट चलेगा. आपको यूएस, सिंगापुर में करना है तो वहां 1, 2, 3, 4 यही सब चलेगा. फिर से इंटरेस्ट रेट का बात हो रहा है. इंटरेस्ट, इंडिया में डॉलर आ जाएगा तो क्या इंटरेस्ट रेट नहीं होगा? अब करेंसी से क्या मतलब है? इकोनॉमी. उधर से लोन लेके आके तो इधर. अब क्या है, करने वाला करता है सब कुछ. फॉरेन लोन होता है, होता है. ठीक है? बट आप बोलोगे हम करेंगे, यू विल सी सम प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग. गवर्नमेंट आ जाएगा ना बीच में, फेमा आ जाएगा बीच में, पैसा किधर जा रहा आ रहा है बीच में. गवर्नमेंट बोलेगा बहुत अच्छा, इनकम करो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, होता है. बोला सब ठीक है, इनकम करो, टैक्स दो. कैसे समझे? So it's not a problem. Can do. Business in forex, you know. Forex का भी बिजनेस होता है, होता है.
प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट माने ये एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड मीनिंग यू नो फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो लिंक्ड विथ रेट, ओके। नाउ एक मिनट, सोशल फैक्टर्स, कंपनीज प्रोडक्ट, ठीक है। डिमांड, कंपनी जो सामान बनाएगा उसका डिमांड, तो आप जिस सोसाइटी में, उस सोसाइटी में उस प्रोडक्ट का डिमांड है कि नहीं है, राइट। सो दैट बिकम्स सोशियो फैक्टर। लीगल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, ओके। इफेक्ट, environmental, factors, so tourism, farming, इंश्योरेंस, ठीक है, एटसेट्रा। नाउ एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट means you have the product for which there is existing market. You have the product, you have to create a market. We'll use the term new market. ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। ओके, नाउ चलो, व्हाट योर क्वेश्चन इज? Next, write down. So regarding factors under pestle analysis, each word you have number of words interconnected, and analysis. So for business, this pestle analysis is also one part. So if they use the word, write a short notes or something on pestle. So pestle 6 you have to explain. ठीक है? Under strategic management, main head is strategic management. So you have to link your answer with strategic management. Okay, write down internationalization of business. Internationalization of business. So internationalization of business, okay, as the word is internationalization, what happens? Word global, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना है, वन इज इंडिया, ये इंडिया हो गया। अब बाकी जो भी है ये आउटसाइड इंडिया हो गया। इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। पाकिस्तान में बिजनेस किए तो क्या है? वो इंडिया के अंदर है ना, बाहर है? क्यों नहीं होगा? मैंने पाकिस्तान का काउंट नहीं है, नेपाल काउंट नहीं है, भूटान काउंट नहीं है, सब आउटसाइड इंडिया है। सो बिजनेस इंडिया
outside India. So when you do business globally, your product is sold in more than one country, then it becomes your business is global. Then again what happens? One is national, one is international, and one is multinational. एक दो कंट्री तक ले लो, लेकिन नंबर ऑफ कंट्रीज ले लो, ठीक है। और एग्जाम्पल में हम लोग को ही बांग्लादेश, भूटान, नेपाल ये सबसे दूर रहना है। नाम लीजिए कनाडा, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, ये सब नाम लीजिए, ठीक है। चलो, so India, outside India. So why global? Question comes, why global? So simply first answer is maximize profit, expand business, expand business. Okay. So again एक वर्ड होता है एक्सपोर्ट और एक वर्ड होता है एक्सपोर्ट गवर्नमेंट सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स डिस्करेज। तो आप जब भी एक्सपोर्ट करोगे, आप जब भी एक्सपोर्ट करोगे तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा। तो आपका गवर्नमेंट ठीक है एक्सपोर्ट में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन किसी कंट्री में तो इंपोर्ट हो रहा है ना, वहां का गवर्नमेंट प्रॉब्लम होगा, रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करेगा तब। तो ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है, अच्छा तो है, बट अदर कंट्री। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का पहले मीनिंग समझना होगा, कैसे क्या होता है। नाउ रूल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये सिमिलर है, आप इंडिया में बिजनेस करो, ग्लोबल बिजनेस करो, सिस्टम एक ही है। बट व्हाट हैपेंस, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द लीगल प्रोविजंस ऑफ अदर कंट्री। आपको कुछ टेक्निकल समझाते हैं, ठीक है। से इंडिया, से कनाडा, ठीक है। आप कनाडा में गए, माल बेचे, राइट। अनदर इंडिया, कनाडा, कनाडा से आदमी आया, माल लिया और चला गया। कनाडा से आया, आपसे सामान खरीदा और लेके चला गया। Possible or no? Yes, sir. Do you have to know the legal provisions of Canada? No. क्योंकि आप तो कुछ किए नहीं। इसको तो एक्सपोर्ट नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन है, माल गया या नहीं गया? तो ये इजी हो गया आपके लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, आया, लिया, चला गया, और आप डायरेक्ट जाके बेचे। तो जाके बेचने में क्या होगा,
यहां से क्लियर कराना होगा, यहां एंट्री करना होगा, कॉम्प्लेक्सिटीज है, बट अगेन इट इज बिजनेस, इट इज बिजनेस। हो सकता है आपका 100 कस्टमर है, 2 कस्टमर आके ले गया, बट 98 को तो देना होगा ना, ठीक है। यहां पर आपका 100 रुपया दाम है, आप यहां पर बेचते हो 300 में, राइट। ये अगर यहां से आया 100 में, आपसे 90 में लेके चला गया, अपना ले गया, वहां बेचा 300 में, पॉसिबल। सो यू विल प्रीफर गोइंग देयर एंड सेलिंग। तो ये बिजनेस है, इट इज डिसीजन मेकिंग। फिर क्वेश्चन वो नहीं है, आप क्या करोगे जिसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट हो, जिसमें आपको, ठीक है। अब चलो एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप कनाडा जाके बेचोगे ना यहीं से बेचोगे? दोनों बेचेंगे। अपने को माल बेचना है, यहां आके लिया 10 रुपया बचा, वहां जाके दिए 50 रुपया बचा, अपने को 10 भी चाहिए 50 भी चाहिए, सब चाहिए। कैसे समझे? इट इज बिजनेस। आप नहीं दोगे दूसरे से लेके चला जाएगा वो। कैसे समझे? इट इज बिजनेस। बिजनेस में बिजनेस मीनिंग समझना होगा। जो मिलता है, कम भी मिलता है, ले लो। कब आप बोलोगे कम नहीं करेंगे? अदर इज बाउंड टू पे, अदर इज बाउंड टू पे। बाउंड टू पे व्हेन? मोनोपोली। बाउंड टू पे व्हेन? मोनोपोली। ठीक है, तो मोनोपोली में ये सब होता है। चलो वापस, दिस पॉइंट इज क्लियर। चलो so process of management is same. So some points: opportunity, okay, objectives, ठीक है, resources, what? Resources. So why will do? Maximize profit. Now, so if question is why do business? Why do businesses go global? Okay, one word is we want to grow, right? ठीक है। Now, world rapidly shrinking, due to development. इसको मीनिंग क्या है? ध्यान से, जैसे पहले हम लोग वर्ड यूज करते थे यूएस, हाउ, नॉट पॉसिबल, डिस्टेंस, ये वो,
आजकल बोलता है नो प्रॉब्लम। बोला माल कैसे जाएगा, बोला शिप से जाएगा, पहुंच जाएगा, विद इन 1 month गुड्स विल रीच। ठीक है, कॉस्टली गुड्स, कॉस्टली, वॉल्यूम लेस, वैल्यू मोर, देन कम्स कार्गो फ्लाइट्स। बट आपको वॉल्यूम वाला गुड्स भेजना है तब तो कार्गो नहीं चलेगा ना, फ्लाइट, फिर तो शिप से ही भेजना होगा। ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, सो डेवलपमेंट। सो नाउ व्हाट वाज बियॉन्ड, नाउ इट इज विद इन, इट इज। सो वी वांट टू ग्रो। श्रिंकिंग का मतलब ड्यू टू टेक्नोलॉजी, दिस दैट थिंग्स बिकमिंग मोर क्लोजर, दैट इज व्हाट यूजिंग श्रिंकिंग। ऐसा नहीं कि लैंड श्रिंक कर गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दैट इज श्रिंकिंग। नाउ वाइडर मार्केट, वाइडर, ठीक है, डोमेस्टिक इनएडिक्वेट। डोमेस्टिक इनएडिक्वेट का मतलब क्या है, आपका जो डोमेस्टिक मार्केट में है, आउटसाइडर लोग आपके मार्केट में घुस जा रहा है, तो आपका मार्केट छोटा होते जा रहा है ना। अब आपको प्रोडक्ट बेचना है तो आप क्या करोगे, आप भी दूसरे मार्केट में जाओगे। Nowadays one very important thing you will recognize, ये ऑल इंडिया का केस है। Earlier one person was doing one business, earlier एक आदमी एक काम करता था। अभी देखोगे एक आदमी 4 काम 5 काम, जो मिलता है वही करने लगता है। मतलब मीनिंग सब बदल रहा है, थिंकिंग चेंजिंग। वाई डूइंग सो, वन इज नॉट सफिशिएंट, तो उसको क्या करना पड़ रहा है, दूसरे साइड में जाना पड़ रहा है। 2 से भी काम नहीं हो रहा है, तीसरे से जाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लाइन में लोग दूसरा घुस गया तो उसका एरिया कम हो गया। इसको भी क्या करना होगा, दूसरे के लाइन में घुसना होगा। अल्टीमेटली ऑल आर लूजर एंड हु इज गेनर, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट को तो टैक्स उससे लो इससे लो, उसको क्या करना है। ठीक है, तो मेन कंज्यूमर, कंपटीशन इंक्रीजिंग। ठीक है, अगेन कोई बात नहीं, चलो सब आंसर सही है, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं सोचे और लिखे ही नहीं। ठीक है, चीप लेबर, आपको जिस कंट्री में सस्ता लेबर मिलेगा उस कंट्री में चले जाओगे। ठीक है, नाउ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी एंड दिस ऑल। ठीक है, नाउ टैलेंट, जहां से आपको टैलेंट मिलेगा वो सबको टैप करोगे। ठीक है, नाउ reduce high transportation cost, high transportation cost। आजकल क्या होता है, ड्यू टू टेक्नोलॉजी ये सब भी कम हो रहा है। कम का मतलब लोडिंग अनलोडिंग थ्रू क्रेन, कंटेनर्स, मालूम है आजकल क्या है, कंटेनर्स।
ठीक है, माने कंटेनर में माल रेडी है, शिप आया, फटाफट लोड किया, चला गया। पहले लोडिंग में 10 दिन, अनलोडिंग में 10 दिन, 20 दिन। अभी क्या है, कंटेनर फुल करो, लॉक मारो, कंटेनर उठाएगा, 100-200 कंटेनर लेगा, चला जाएगा। क्या समझे? इवन आजकल वाटर टाइट कंटेनर सब आने लगा। व्हाट इज वाटर टाइट कंटेनर्स? कभी कुछ हो भी गया तो फ्लोट करेगा, किनारे नहीं लगेगा, लेकिन समझ गए? ठीक है। क्या ऐसे पूरी में आपके कंटेनर वो बाड़ी में 12 ओके, लार्जेस्ट सिंगल सेक्टर, जैसे किसी किसी एरिया में एकदम लार्जेस्ट बनना है तो आपको ग्लोबल नहीं होगे तो हो ही नहीं सकते हो। एक सेक्टर में सबसे लार्जेस्ट बना। किसी एरिया में आपको टॉप बनना है तो ऑल ओवर वर्ल्ड आप दोगे तभी बन सकते हो। जैसे कैमरा वगैरह है तो सोनी, ठीक है। नाउ अब आपको प्लेटफॉर्म में आजकल अमेजोन, ये क्या है, ये लोग वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रहा है। दे हैव सेटिंग्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, समझ गए? अगेन ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड redefined. Now, nowadays, World Trade Organization object is all over the world, anyone can sell any goods anywhere all over the world, and there should not be any barrier, at least member countries, at least। तब क्या होता है, approx 196 countries are there, so 196 countries are there, and between 160 to 180-85 countries are members organization, so they accept what they say। जैसे इंडिया भी है, चाइना भी है, यूएस तो सब में ही है। मेन कंट्रोल इज फ्रॉम, सबका कंट्रोल यूएस में है। दे हैव मेड नंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक, समझ गए? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक बिल्डिंग है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो ट्रेड बैरियर्स redefined, trade barriers redefined, so they can do business globally। ये क्या है, एक हेजिटेशन है। क्या है? सपोज आपको बिजनेस करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक हेजिटेशन है, कैसे होगा, पॉसिबल होगा नहीं होगा, माल जाएगा नहीं जाएगा, पैसा आएगा नहीं आएगा, डूब तो नहीं जाएगा। बट वंस यू कंप्लीट द टोटल प्रोसेस, then you are aware, okay, possible, and once you change the country, okay, price structure totally changes। Price structure, you have seen number of products within India in different places, different prices there। When you cross the country, huge difference in price, मतलब यहां पे 100, वहां पे 600, क्या समझे? तो आपका क्या होगा, देयर इज स्कोप ऑफ बिजनेस पॉसिबल। देयर आर सम पर्सन्स
There are some persons means big list. Their only object is export import. Only object is no production. कोई माल नहीं बनाएगा, खाली उधर का माल लाके इधर बेचेगा, इधर का माल उधर बेचेगा. मैंने शिप भर के ले आया, इंडिया में बेचा, और इंडिया से भर के ले गया, बाहर में बेचा. प्रोडक्ट सबको बोल दिया बनाओ, प्रोडक्ट सबको बोल दिया बनाओ, बस एक्सपोर्ट के लिए हम लोग को दे दो. कैसे समझ में आया? दे आर एक्सपोर्टर, नॉट मैन्युफैक्चरर. वन इज मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, और एक है माने दे हैव एक्सपर्टाइज ऑफ एक्सपोर्ट्स. यहां से लिया बाहर में बेच दिया, बाहर से लिया इंडिया में बेच दिया, और कोई काम नहीं करना है, बस यही काम है. समझ गए? इट्स अ बिग बिजनेस, इट्स अ बिग बिजनेस एंड ह्यूज सक्सेस ऑल्सो, ह्यूज सक्सेस. समझ गए? चलो अगेन, ट्रेड बैरियर्स रीडिफाइंड. ओके, strategic alliance. Strategic alliance. इसमें क्या है? Threats and leverages. Now, by this what happens? Your risk reduces. जो खतरा है वो आप कम कर सकते हो. मतलब जिससे खतरा है उसी के साथ अलायंस कर लिए, पॉसिबल, और बेनिफिट वाला काम कर लिए, लिवरेजेस. ठीक है, जो आपके बेनिफिशियल में है उसको प्रीफर कर लिए. सो दिस इज पॉसिबल बाय स्ट्रेटेजिक अलायंसेस. ठीक है. नाउ competitive advantage. Competitive advantages. Competitive advantage में क्या होता है? आप जब अलायंस कर लिए तो थोड़ा सा कंपटीशन कम हो गया. ओके, सो by doing global business, but all in connection with 2 or more countries. Locally सब कर रहे हो, उससे काम नहीं होगा. It must have effect on global. Global होने से काम होगा. ठीक है. Write down international environment. International environment. So क्या क्या होता है? सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक. ठीक है. पॉलिटिकल, गवर्नमेंट, लीगल, टेक्नोलॉजी. देन वर्ड इज लिमिटलेस. कभी कभी ऐसा होता है कि बोलता है जितना मन करो, लिमिटलेस, कोई लिमिट नहीं है. ओके, माने एज मच एज यू डू. ओके, माने दे आर नॉट इम्पोजिंग एनी लिमिटेशन ऑन यू. सो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट. ठीक है. assessment
can be done at three levels. Three levels. One, multinational. Environmental analysis. Regional environmental analysis. Country environmental analysis. इसको ध्यान से समझना है. जैसे इंडिया हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल करके बांटते हैं, उसी तरह से होल वर्ल्ड भी है. एक है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मल्टीनेशनल. रीजनल, इसमें भी होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके डिवाइड होता है. फिर कंट्री वाइज, एक एक कंट्री. ये सेगमेंटल रिपोर्टिंग अलग चीज है, वो सब अकाउंट्स है. ठीक है. सर रिपोर्ट क्या वर्ड मीनिंग हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. नाउ देन राइट डाउन reduce risk. Okay, reduce. Our object is by doing international business you can reduce the risk. बिजनेस का क्या होता है, आप जितना बिजनेस एक्सपेंड करते जाओगे एक एक जगह पर रिस्क बढ़ेगा, ओवरऑल रिस्क कम हो जाएगा. चलो एक एग्जांपल समझो. आपका एक शॉप है, सामान बिका नहीं बिका, ज्यादा बिका कम बिका, ऐसा वाला चक्कर है. आपका दो दुकान है, कहीं पे डिमांड है, आपके पास स्टॉक है, दूसरे दुकान से शिफ्ट कर सकते हो. उसका नहीं बिका, दूसरे दुकान में शिफ्ट कर दो. तो आपका क्या हुआ, रिस्क बढ़ रहा है या घट रहा है. आपका 10 दुकान है, प्रोवाइडेड यू कैन मैनेज ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, तो आप क्या करोगे, अपना रिस्क रिड्यूस कर लोगे. कैसे समझे. तो जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड होगा कुछ रिस्क बढ़ेगा, कुछ रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा. ठीक है. सो रिड्यूस रिस्क. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट and industry. Understanding product and so businesses sell products. बिजनेस क्या बेचता है, प्रोडक्ट. ठीक है. और कोई भी प्रोडक्ट है उसका एक इंडस्ट्री है. Whatever product you sell, it has some industry. Now regarding products, either tangible or intangible. तो नॉर्मली सर्विस इंडस्ट्री जो होता है क्या होता है, इंटेंजिबल. ओके. जैसे मान लो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब क्या है, इंटेंजिबल. और एक होता है टेंजिबल, माने फिजिकल गुड्स. ठीक है. देन अगेन प्राइस, प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है. अब देखो यहां पर इंटरेस्टिंग से मोबाइल सर्विसेज, मोबाइल फोन प्रोडक्ट है बट इंटरनेट कनेक्शन एक सर्विस है.
अब यहां पर समझने का चीज है, से यूएस में सब डेवलप हुआ, सब कुछ हुआ, बट वहां पर महंगा है। वहां से किसी को फोन करना है ना इंडिया में, इट्स अ ह्यूज कॉस्ट, इट्स अ, कैसे समझे? इंडिया से आप करोगे वहां भी कॉस्ट है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम इंटरनेशनल कॉल। अब nowadays a new solution has came, WhatsApp फ्री सर्विस, ठीक है। ये सब क्या है, एक एक टेक्नोलॉजी है, उसका बेनिफिट उठाओ। तो आपका क्या हुआ, बिजनेस में कंपटीशन भी आ गया। जब कोई सर्विस फ्री हो गया तो वहां पर अब आप फाइट कैसे करोगे? सपोज आपका जियो का कनेक्शन है, अब व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, फाइट कैसे करोगे? तब दो ही उपाय है, या तो आप सर्विस ही चेंज करा दो, एयरटेल कर दो, अदरवाइज आप फाइट करोगे कैसे? प्रॉब्लम आ जाता है ना। एनीवे, वन वर्ड इज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, वन इज गुड्स, वन इज सर्विसेस, ठीक है। डिलीवरी सेटिस्फैक्शन, डिलीवरी सेटिस्फैक्शन। आप माल बेचोगे तो सर्विस तो देना होगा ना, या सामान बेचोगे तो सामान देना होगा, और सामने वाला खुश भी हो। आप अमेज़न से कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपके पास 1-2 दिन में आ जाता है ना, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट? डिलीवरी सेटिस्फैक्शन, ठीक है। नाउ product is pivotal for business। आप जो भी बेचते हो, गुड्स बेचो, सर्विस बेचो, जो भी बेचोगे, तो प्रोडक्ट आपके लिए मेन चीज है, गुड्स और सर्विस, ओके। यूजफुल लाइफ, any product has a useful life, ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ टेक्निकल आजकल वर्ड चलता है, लाइफ टाइम गारंटी। लाइफ टाइम, इसका नॉर्मल मीनिंग आप क्या निकालोगे? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे सर्विस फ्री मिलेगा, ठीक है। तो बोला जब गारंटी है, प्रोडक्ट का जब गारंटी है लाइफ टाइम, तो प्रोडक्ट का लाइफ खत्म कैसे होगा? अब यहां पर थोड़ा थोड़ा टेक्निकल चेंज हो जाता है कि आपका लाइफ टाइम गारंटी है ना प्रोडक्ट का लाइफ टाइम, तो प्रोडक्ट का लाइफ क्या है? तो बोला गारंटी के 2 दिन पहले चले जाएंगे, बोलेंगे नया दे दो। तो यहां पर सब टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, फिर लीगल डिस्प्यूट्स है। व्हाट? लीगल लॉज ऑफ द कंट्री, ठीक है। तब क्या होता है, जो लीगल इंटरप्रिटेशन, एक होता है नेशनल, एक होता है इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल से फिर वर्ड आता है, व्हाट इज द लीगल मीनिंग। तो गारंटी देने वाला कौन है, उसका लाइफ टाइम वारंटी का मीनिंग क्या है?
तो वो क्या करता है, फिर प्रोडक्ट बोलता है इस प्रोडक्ट का लाइफ टाइम है 5 इयर्स। समझ गए? 5 साल तक कवर्ड होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो बोलेगा उसमें 5 इयर्स क्यों नहीं लिखा पहले? बोला वो इम्प्लाइड है, नहीं लिखा है मतलब 5 साल। क्लियर? तो इट हैपेंस, ये सब ऐसे ही होता है। ठीक है, नाउ दिस इज ओके। चलो नेक्स्ट राइट डाउन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, so one is sales, ठीक है, सेल्स टाइम, stages, introduction, growth, maturity, decline। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वी कैन से PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। नाउ इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। आपका कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, आपका कोई भी प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट है आया, सेल बढ़ेगा, सेल उसके बाद क्या होगा, माने बढ़ेगा माने ग्रोथ हुआ, एक स्टेबिलिटी आएगा, उसके बाद एक सर्टेन टाइम के बाद फिर वो डिक्लाइन करेगा। ठीक है, अभी एक रिसेंट का है, स्टडी में ये सब बाद में आएगा। यू सी, मान लो पेंट इंडस्ट्री, पेंट एक वर्ड होता है लीडर। तो सपोज लीडर अभी कौन है, एशियन पेंट। लीडर क्यों, मेजर शेयर उसका है। ठीक है, नाउ अदर पेंट्स भी है, बर्जर, डिलक्स आ रहे हैं, बर्जर, डिलक्स। ठीक है, फिर आप जॉनसन ले लो, सब जो भी एक्स्ट्रा अदर्स। ठीक है, नाउ न्यू इंट्रेंट, बिरला ओपस, बिरला, and this is giving tough competition to Asian Paint, right? किसको टफ कंपटीशन दे रहा है, एशियन पेंट्स को। तो नया एंट्री मारा and giving tough competition to Asian Paint. What happening? Birla Opus entry, Asian Paint market share reducing,
नो वन इज लीडर अप टू इंडेफिनिट पीरियड। बस क्या है, कोई कंपटीशन देने वाला होना चाहिए। ये समझे? अब क्या हुआ, एट अ टाइम रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग में क्या हुआ, शेयर प्राइस डिक्रीजिंग। क्या हुआ, घटने लगा। टक्कर कौन दे रहा है, बिरला ओपस। बिरला ओपस। कंपटीशन इन ऑल द एरियाज, कंपटीशन इन ऑल द एरियाज। इससे क्या होगा, अब अंतर आने लगा, राइट। दिस इज बिजनेस, दिस इज बिजनेस। एक होता है कंपनी का लाइफ और एक होता है जो सामान बेचा उसका लाइफ। जैसे एक मारुति कार सेल किया, कार का लाइफ, और एक होता है कंपनी का लाइफ। कंपनी इज परपेचुअल, चलता रहेगा, कंपनी चलता रहेगा। बट प्रोडक्ट 10 साल, 5 साल, 15 साल, ठीक है। अगेन, so these are also important. तो प्रॉफिट भी क्या होता है, पहले इंक्रीजिंग, फिर क्या आएगा, स्टेबल डिक्रीजिंग। ठीक है। इंटरेस्टिंग क्या है, शार्पली डिक्रीज। हम लोग जो बनाए कि इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइनिंग, ऐसा भी बना सकते हैं। ये जो बनाए ना हम लोग अभी चार्ट, इसी तरह का है। तो इसका लाइन इस तरह भी हो सकता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ठीक है। This point is clear. Now, one most important word, they can ask you short notes or something also. Write down the word value chain analysis. Value chain analysis. Now, what do we mean by chain? Interconnected. Value, money matters. Creating value and that analysis. In this regard, what happens? Start to end. What is start to end? Final profit. Final, that is also known as margin. So, total analysis from start to end, one is product and one is support services. Okay, to understand, drawing one simple chart, and from that itself word meaning will be there, and finally product is sold at a price higher than cost, and different is margin. Value creation, what happens? Value creation, raw material you make finished product is value creation. Finally, ultimate object is sell out the product and at a profit. So, write down, direct one chart, automatically full meaning will be clear. Okay, write down. First, the way I am doing, you also do, meaning will be clear.
inbound logistic, operations, outbound logistics, marketing and sales, then services or service. Now, firm infrastructure, firm infrastructure, human resource management, human resource, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोक्यूरमेंट, मार्जिन, सपोर्ट एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज, वैल्यू चेन, माइकल पॉटर, ठीक है। नाउ ठीक है, अब देखो घूम फिर के इनबाउंड लॉजिस्टिक, माल आएगा, माल आएगा तो माल लाने में लॉजिस्टिक मतलब क्या होता है, माल इधर से उधर करो, ऐसे करो वैसे करो, उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक, इनबाउंड। फिर उसके बाद पूरा ऑपरेशंस होगा, माल प्रोडक्ट बनेगा, कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद फिर माल का, ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग होता है, सेल्स होता है। ऐसा नहीं माल बेचने के बाद काम खत्म हो गया, उसके बाद आपको सर्विस भी देना होगा। जैसे मान लो एसी बेचा, आफ्टर सेल सर्विस देना होगा ना। आप माल बेचे, बोले बाद का हमको कोई मतलब नहीं, तो पब्लिक लेगा ही नहीं आपसे। सम इंडस्ट्रीज योर सेल इज डिपेंडिंग ऑन आफ्टर सेल सर्विस। ये नहीं बेच दिया कहानी खत्म, वो बिकेगा, माल ही नहीं बिकेगा। माने प्री कंडीशन इज आफ्टर सेल सर्विस एंड इट शुड बी विजिबल। मान लो कार बेच दिया, एसी बेच दिया, बेचने के बाद फोन करता है, कोई उठाता ही नहीं है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट कर जाएगा। बाद में फ्यूचर वैल्यू भी खत्म हो जाएगा। बाद में आप बोलोगे गारंटी, बोला गारंटी का कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट? गारंटी का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये भी एक पार्ट है। चलो अगेन, सो अब देखो फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको माल बनाना, आपका फैक्ट्री होना चाहिए, शेड होना चाहिए, मशीन होना चाहिए, आपका पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फैक्ट्री तो है, आदमी है कि नहीं,
फिर है ये सब काम करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं, माने टेक्नोलॉजी कौन सा एडवांस वाला है या ट्रेडिशनल है, ठीक है। और सब होने के बाद प्रोक्यूरमेंट, सामान लाना पड़ेगा, आदमी अपॉइंटेड है, इसको बोलते हैं सब तरह से प्रोक्यूरमेंट, सब तरह से लिया। फिर इनबाउंड लॉजिस्टिक, तो कुछ सपोर्ट सर्विस चाहिए कुछ, और प्राइमरी में आया माल आया, बनाया, बेचा, मार्केटिंग, ये प्राइमरी, ये तो मेन काम है ही, साथ में सपोर्ट एक्टिविटीज, ये फुल मिला के एक सिस्टम रेडी हुआ। और अगर सब तरफ से इट्स ओके फाइनल, देन वी यूज द वर्ड वैल्यू चेन एंड इट इज टर्म्ड एज, माने वैल्यू चेन एनालिसिस, इसी सब वर्ड को एनालाइज करना है, एनालिसिस, एंड दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय माइकल पोर्टर। क्लियर? सो इन दिस something more are there that will be continued. Okay.